इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसी पिछली वीडियो में हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम हैंड के द्वारा अलग अलग जैसे हैंड की अलग अलग मूवमेंट के द्वारा हम अपनी बात को रखते हैं, बताते हैं सामने वाले को, और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा। तो इस नॉन वर्बल में हम पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, गेस्चर यूजिंग साइंस एंड हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, एड्स। Remember, how we say is more important than what we say. For effective communication, using the right gesture during a speech or an interview make our message more effective. For example, namaste or handshake when you greet a person, smile when you want to show warmth, from when you want to show anger. These gestures communicate different messages at different times. Types of non-verbal communication. Non-verbal communication के कौन कौन से कितने टाइप होते हैं, आइए जानते हैं। There are different types of non-verbal communication which are hand movement, body language. One can express an idea or a meaning through waving hands during a speech, raising a hand to ask a question or to interpret for a chance, raising a closed fist upwards, showing a sign of victory, showing two fingers in a fight to show surrender, shaking hand to greet a person, banging a table or clapping both hands to अपलाउड एड्स। तो ये अलग अलग तरह के साइन दिए गए हैं। जैसे हमें किसी को अच्छा बताना है तो उसके लिए ऐसे वाला साइन करते हैं कि वेरी गुड। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस रिफ्लेक्ट ए फीलिंग ऑफ ए पर्सन हु इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू गिव ए proper meaning to a message. For example, we smile to show our warmth and happiness. Frown our brows to show anger. जैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे हमें एंगर दिखाना हो तो इसमें तो एंगर दिखाते हैं। Blush to shy and give a sad look when upset. There are a lot of facial expression to show different moods of a person at the time of communication. जैसे this is sad face, angry face, laughing face, जो अचरज, जैसे किसी चीज़ को देख के हमें अचरज हो जाता है तो उसके लिए। आई कॉन्टैक्ट। In a conversation, our eyes serve the purpose to interpret people's movements, gestures, and eye contact. A speaker can use his or her eye contact to determine if an audience is engaged, confused, or bored, and then adapt his or her message accordingly.
जब एक मतलब सामने जो कोई खड़ा होता है, जैसे हमारी टीचर खड़ी है, तो हम तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो बच्चे का फेस देख करके बता देते हैं, या फिर ऑडियंस जो जैसे कोई सिंगर है तो वो अपनी ऑडियंस का मूड देखकर कैसा गाना है उसके अकॉर्डिंग ही वो गाना गाता है, या टीचर उसके बच्चों के अकॉर्डिंग ही बच्चे की स्थिति को देखकर उसे समझाती है। टच। द पावर ऑफ टच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग डिफरेंट मीनिंग in a conversation. Touch can be welcoming, threatening, or persuasive depending on the situation. A hug shows love and happiness, or brings comfort to a friend at the time or sorrow. Pat on the back shows encouragement or appreciation to a subordinate or a child. Holding tightly or pushing away a person shows treat. मतलब किस तरह का बिहेव करते हैं पर्सन। जैसे हम किसी को टाइटली हग करते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हमने हग किया बहुत ज़ोर से, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बच्चों पे प्यार आया होता है तो उसको हम टाइटली हग करते हैं। और किसी से कोई नफरत करता है तो उसको थोड़ा सा पुश कर देता है। नेक्स्ट है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर इज एन orientation and positioning of our body to send various meanings. Bowing a little to greet a person, sitting on knees to pray, standing straight to show confidence, lowering head to feel ashamed. Advantage of non-verbal communication. नेक्स्ट है एडवांटेज। कौन से एडवांटेज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इट इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट वर्बल मैसेज। दे ऑफर इमेंस हेल्प टू दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू analyze a non-verbal message. It is difficult to have a long conversation and important explanations are often lost in non-verbal message. तो ये हुआ non-verbal message के बारे में। The third is visual. Visual में इसी में कंप्लीट कर देती हूँ बिकॉज ये छोटा सा है। विजुअल क्या होते हैं, जिसको हम देखकर जैसे शाइन होते हैं, हम उनको देखकर कि पता लगा लेते हैं कि जैसे कि एरो का निशान बना है कहीं पर तो हमें पता चल जाता है हमें इस साइड जाना है या इस साइड नहीं जाना। तो उसके लिए जैसे रोड मैप्स हुए इत्यादि। विजुअल कम्युनिकेशन इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, flowcharts, signs, symbols, images, mind maps, road maps, ads. It does not require learning any language. मतलब इनको लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है, ओनली ये साइन होते हैं। पर कई जगह पर लिख भी दिया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं होती साइंस में, विजुअल में। It is considered one of the easiest way to communicate as the human brain understands and interprets images easier in comparison to a text. ये लिखने की बजाय साइन जैसे हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो ये हुए थ्री कम्युनिकेशन टाइप। वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। दो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। एक
मेरी पहले की वीडियो में है, तो आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद।